وہ کہتے ہیں جی یہ بھی سارے نال بولنگے سارے بولنگے خود نہیں بول سکتے ہونے نہیں مطلب اگر علماء موجود ہیں تو عوام تو خاموش رہنی چاہیے. دیکھیں حضرت اگر میں کوئی اشکال ہے تو میں بول کے پوچھ سکنا نا سنیں نا ایک منٹ سنیں میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. جی جی ایک درس ہے نا درس میں آپ کو ہو ان کو ہو کسی بھی شخص کو ہو وہ سوال کر سکتا ہے صحیح ہے نا بات. لیکن جب اگر علماء کے درمیان گفتگو ہو رہی ہو تو پھر عوام کا یا مطلب لوگوں کا یہ حق بنتا ہے فرض ہے کہ وہ خاموش رہیں. علماء خاموش ہیں علماء اگر بول رہے ہیں تو عوام خاموش ہو. یہ ایک مجلس کے آداب میں شامل ہے. اگر ویسے درس کی شکل ہے تو ہر بندہ باری باری سوال کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اگر علماء اجازت دیں کہ اگر کسی کو کوئی ہو مسئلہ وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر عالم بھی بول رہا ہو اور عوام بھی بول رہی ہو پھر صحیح ہے. علماء بھی بول رہے ہو اور عوام بھی بول رہی ہو. یہ تحریریں جو ان کے لکھی ہوئی ان کے سائن موجود ہیں اس پر تو وہ بات نہیں کر رہے ہیں ان کے علماء نا اور وہ مطلب بڑک مار رہے ہیں سب کے سامنے چھوڑے تحریروں کو سادہ کاغذ لائیں میں سائن کر کے دیتا ہوں جو مرضی بات کریں. یہ کیا باتیں یہ اس طرح کی کوئی باتیں مناسب باتیں یہ اس طرح بھی مقصد حل تو نہیں ہوتا نا. یہ 3-4 تحریریں بھی تو انہیں کی لکھی ہوئی ہیں لوگوں کے سائن موجود ہیں. اور لوگوں کی آواز نہیں پولیس آ گئی تو پھر کیا ہوگا نہ اندر کرنے دیں گے نہ باہر کرنے دیں گے. وہ چاہتے ہیں یہ پولیس آ جائے شور شرابہ ڈال کے ہم کہیں زندہ اندر بیٹھنے والوں کو کیا کہتے ہیں باہر کو نعرہ بازی کر رہے ہیں. آپ باہر چلے چلے نا پھر اتنا بھی انتظار کر رہے ہیں آپ باہر چلے چلے نہیں باہر یہ چیز نہیں ہوتی اجازت نہیں دیتی. کیا مسئلہ ہے ہم عالم بھی نہ ہو تو عالم کی ہم ادب سے یہ بات انتظامیہ کے بندے نا جتنے مرضی کھڑے نہیں سر انتظامیہ کا اصول یہ نہیں کہ بندے کے ساتھ چڑھ کے بھائی یہ بات کر رہا ہے یہ اصول نہیں ہے. خاموش رہنے کے لیے بھاگ گیا یہ نہیں ہوتا یہ اس کو پھر منہ سے اشارہ بھی کرے میں نے ایسے انتظامیہ کا فرق بندے یار اس کو سمجھاؤ ان سب کا یہ اشکال ہے کہ ہمیں مطمئن کریں. اگر ہمیں یہ علماء مطمئن کرتے ہیں ہم سب اس ان کے ساتھ ہیں. اگر ہمیں وہ مطمئن کرتے ہیں ہم کے ساتھ آئے گا سر آئے گا اگر ہم یہ کیمرہ بند کریں گے یہ بند کر اپنے سائڈ کو ہمارے ساتھیوں کے سائڈ نہیں نہیں یہ تو آپ نہیں کریں گے یہاں نہیں نہیں یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں. یہ کیمرہ بند ہو یہ کیمرہ بند ہو یار آپ میں یار سیٹنگ کر رہے ہیں آپ باہر نکلیں کیوں نکال آرام سے بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں
दिखाएं अभी आएंगे ना नहीं मुफ्ती यार बड़े पैर साढ़े तो बहुत लागे एक सेकंड, अपने जो साथी हैं ना ये सारे इधर बैठ जाएं भाई आप तीन आदमी उनके आ जाएं, बराबर बराबर आदमी है, बाहर वाले आदमी अंदर नहीं आएंगे। वो गुफ्तगू जब तैयार हो जाएगी फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे। एक आदमी आप पे छोड़ जाएगा, एक आदमी जाए सबको ला सकते हमको इस तरह की बहुत जो हम बयान कराए हमारा नजरिया। हम ये कहते हैं कि उलमाए देवबंद के अकायद कुफरिया शिरकिया हैं। एक मजीद और बात हम ये भी साबित करेंगे कि उलमाए देवबंद के बाज़ अकीदों को इमाम अबू हनीफा ने भी कुफर करार दिया। जो अकीदा वो रखे हुए हैं उस अकीदे को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी कुफर करार दिया है। कुरान हदीस अलग है इससे। तो हमारा ये दावा है, हम किसी पर काफिर और मुशरिक का फतवा नहीं लगाएंगे। हम हमारा बयान सुने कि उनके अकायद कुफरिया शिरकिया बस यहाँ तक मान अपने मुताबिक बात ठीक है, ठीक है। जिन साथियों ने सवाल तो अगर मुनाज़रा होगा तो सवाल नहीं होंगे, अगर तो बयान होगा तो फिर सवाल नहीं आपको बात होगी नहीं वो मैं ऐसे करता हूँ आप सारे साथी बात ये तहजीरी कि भाई दोनों हजरात जो है आवाम आ जाएंगे बाहर आ जाएं और फिर अपने अपने आदमी तीसरी शादी के लिए करके और हम आपस बातचीत करें। हमारे भी हालात भी दोनों बाहर आ जाए, आप अपनी भी शादी के लिए हम अपनी भी शादी के लिए और हम आपस को इशारा करें। 2 मिनट अभी शादी किया नहीं हमारा शादी अभी किया जो अजन सर बात ये है कि हमारे एक बात ये आपके करेंगे साहब वो साबित आप करें ये आपके पास यहाँ जगह नहीं है, हम आपकी माने जा सकता हमारे पास हम आपके फिलहाल अब ये सब तय हुआ है। सिर्फ मस्जिद जो है ओपन होती है हर एक के लिए, उसमें आप किसी को रोक नहीं सकते। ये मकान ऐसा है जिसमें बराबर बराबर तादाद के बाद अगर कोई बाकी होना चाहे हमारे के मकान रोक देगा, मस्जिद रोकने की जगह नहीं। बराबर बराबर आते हैं, बराबर आपको देखने का साथियों के नाम से पहले कि मैं इस निजाम की बात भी करूं, कैमरे का इंतजाम करने से नहीं आप तशरीफ रखें प्लीज, कोई बात नहीं, अल्लाह को जो है खैर दे, कोई नहीं। आज का बेशक आप जाओ, लेकिन अभी ऑर्डर है ना, चलिए कैमरे का इंतजाम मैंने ही करना है। नहीं अभी गुफ्तगू ही नहीं हो रही है, उन्होंने बात नहीं करी। मैं जूते तलाश करेंगे अच्छा मैं फिर इधर ही हूं ना। हाँ ठीक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
من यशाक़िक़ रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। मैं तमाम अहबाब के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि ये जामा मस्जिद अबू बकर सिद्दीक जो है देवबंदी उलमा की मस्जिद, इसमें रमज़ानुल मुबारक की आखिरी तारीख़ों में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें इन्होंने अपने कुछ मुनाजिर भी, एक इलियास घुम्मन साहब थे और दूसरे उलमा उनको बुलाया। उन्होंने अहले हदीसों के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की और उनमें एक जो बात थी कि ये 1886 की पैदावार है, अंग्रेज़ों ने इनको ईजाद किया है। तो दोस्तों ने फिर मुझे फ़ोन किया, तो ग़ालिबन 29वीं रात को यहाँ हमारी मस्जिद में ऐलान भी हुआ कि जो भी आए सवाल करे और उन सवालों के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे और देवबंदियों की और हनफियों की तारीख़ के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम के साथ आया और उसमें कि अहले हदीस कौन है, अहले हदीस कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, इसको वाज़ेह किया। और फिर देवबंदियों में हयाती और ममाती दो ग्रुप हैं। इसके बाद ये दोनों ग्रुप हनफी हैं, हनफियत का दावा करते हैं, फ़िक़्ह हनफी को मानने वाले हैं। तो मैंने अल्लाह की तौफीक से ये जो हयाती हैं उनका शिर्क उनकी किताबों से वाज़ेह किया, जो ममाती हैं उनके अकाबिर उलमाए देवबंद उनका शिर्क जो था वो उसको वाज़ेह किया, और फ़िक़्ह हनफी उसमें जो कुरान और हदीस से मसाइल टकराते हैं, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हैं फ़िक़्ह हनफी के बहुत सारे मसाइल, उनमें से मैंने चंद का तज़किरा किया। उसमें इनके तसव्वुर इकबाल साहब, उन्होंने, मैंने फ़ज़ाइल सदक़ात का एक हवाला दिया था कि जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि ए अल्लाह के साथ गुफ्तगू करते हुए वो लिख रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं झूठा हूँ, जो तू है वो मैं हूँ, मैं और तू खुद शिर्क दर शिर्क है। तो उन्होंने फ़ज़ाइल सदक़ात मेरी तरफ भेज दी कि इस पर फैसला हो जाएगा। वो अल्लाह के फजल से मैंने सारे लोगों के सामने, और इनमें से बहुत सारे लोग गवाह हैं इस बात के, कि एक शख्स अल्लाह की ज़ात बहुत आला वरफ़ा है, इंसान अल्लाह किस तरह बन सकता है, जबकि ये इंसान को भी अल्लाह ही शुमार करते हैं। तो उन्होंने फ़ज़ाइल सदक़ात मुझे दी, मैंने सफ़ा 558 पर, अगर वो कुतुब खाना फैज़ी की छपी हुई है, उससे वाज़ेह किया कि ये आपकी तहरीर मौजूद है, और इसमें इन्होंने ये बात लिखी है कि जो तू है वो मैं हूँ, मैं और तू शिर्क दर शिर्क है। ये अल्लाह को मुखातिब करके इन्होंने बात की। इस पर उन्होंने फिर तहरीर की कि जी हमें कुछ पता नहीं, हमारे उलमा आपसे बात करेंगे। तो ये तहरीर, ये आप इसको करें, ये तहरीर जो थी जिस पर 5 अफराद उनके और 5 अफराद हमारे बाकायदा साइन हुए, और मस्जिद के कमो बेश 60-70 अफराद जो थे वो इस बात के गवाह थे। और ये तहरीर कहेंगे, आप सीडी पर खुद देख लीजिएगा। अब जब ये तहरीर हो गई तो इनके उलमा परेशान हो गए, उन्होंने इनको डांटा कि आपने साइन क्यों किए, आप कौन होते हैं साइन करने वाले। इसके बाद फिर वो हमारे पीछे उन्होंने दौड़ लगाई कि आप अभी मौजू तय नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैंने इनके काजी इमरान महमूद है, मास्टर सदीक साहब का बेटा, यहाँ इस मस्जिद के वो गालिबन मुतवल्ली हैं, निकाह रजिस्ट्रार भी हैं, उसको बुलाया, और मैं उस वक्त मौजूद थे, सुल्तान महमूद साहब भी थे, और ये जावेद खान साहब के 2-3 भाई भी मौजूद थे, और एक आध कोई और भी मौजूद था। उसमें उनसे मैंने कहा कि आप अपनी फ़िक़्ह हनफी के वो 10 मसले हमसे ले लें, ताकि कल आप ये ना कहें कि हमें मसले बताए नहीं गए और हम किस पर गुफ्तगू करेंगे। तो उसने बड़ी रऊनत के साथ ये कहा, हमारी बड़ी स्टडी है, हमारी बड़ी रिसर्च है। तो मैंने कहा ठीक है, आप अब इतवार वाले दिन आपसे बात होगी 8:30 बजे इंशाअल्लाह ताला। अब उसके बाद फिर उनके फ़ोन आने शुरू हो गए, उस पर भी यही इसरार था कि गुफ्तगू को किसी भी तरह टाला जाए। फिर कल इनके इलियास घुम्मन साहब मुनाजिर हैं, सरगोदा से तशरीफ़ लाए। एक ये मास्टर सिद्दीक साहब के ही बेटे हैं, मौलाना वो शफीक रहमान साहब हैं, वो आए, और एक तसव्वुर इकबाल साहब आए, और हमारे साथी मिस्ती सिद्दीक साहब थे, वो मेरे घर आए। तकरीबन 7:30 बजे से लेकर 11:45 बजे दिन के वो हमारे साथ बहस करते रहे।
اور اس بحث کا نتیجہ اس شکل میں نکلا. یہ تحریر ہوئی, اس کو کریں جی اپنا ندیم. یہ تحریر لکھی گئی. اس تحریر میں یہ لکھا گیا کہ اہل حدیث 10 فقہ حنفی کے مسائل پیش کریں گے, اور جو حنفی عالم ہے, دیوبندی عالم ہے, وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو ثابت کریں گے. اس میں مزید تفصیل جو ہے کہ کتنے افراد ہوں گے اور کتنے کتنے منٹ بات ہوگی, یہ ساری تفصیل اس میں موجود ہے. جب تحریر یہ ہوئی تو انہوں نے پھر ایک اور نقطہ نکالا کہ اس میں ہمارے ان مسئلوں کی بات کی جائے کہ جو مفتہ بہی ہیں, جن پر ہم لوگ فتویٰ دیتے ہیں. ہم نے ان کی اس بات کو بھی تسلیم کر لیا. پھر وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہماری وہ مسئلے ان کو ڈسکس کیا جائے کہ جو معمول بہی ہیں, مقصد یہ کہ جن پر عمل کیا جاتا ہے. اب ان کے مسائل, اصل بات تو یہ تھی کہ جو ہمارا دعویٰ تھا کہ ان کے مسائل قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں, یا یہ بات کہیں کہ ہمارے مسئلے قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہیں, تو اس پر بات ہو جائے گی. عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. بات اتنی تھی کہ ان کے عقائد, ان کے اعمال قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. فقہ حنفی کے بہت سارے مسائل قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. کس بات پر گفتگو ہونی تھی, لیکن انہوں نے اصل میں اپنی جان چھڑانی تھی. انہوں نے اس کا بہانہ بنایا اور اس تحریر پر بھی انہوں نے دستخط نہیں کیے. تو ہم نے ان کو یہ بات کہی, میں نے اپنے ساتھیوں کو میسج دیا کہ آپ ان سے یہ بات کہیں کہ آپ نے اس تحریر کو کل جو تیار ہوئی اس پر سائن نہیں ہوئے, تو آپ کی جو پچھلی تحریر ہے وہ بحال ہو گئی. اب آج ہمارے ساتھیوں نے مسجد میں اعلان کر دیا کل کہ درس قرآن ہوگا. اب یہ اگر درس قرآن کے لیے بھی لوگ آتے تو بیٹھ کر اطمینان سے درس سنتے اور سوال و جواب کرتے, لیکن انہوں نے مختلف علاقوں سے اپنے خاص قسم کے دوست احباب کے جو مدارس سے بھی متعلق ہیں, علماء کی شکل میں بھی ہیں, ان کو بلایا تاکہ یہاں پر شرارت کی جائے. وگرنہ بڑی آسان بات تھی کہ 5 یا 10 بندے بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کے بعد جو گفتگو ہوتی وہ ریکارڈ ہوتی اور اس کے بعد ساری دنیا چاہے دیکھتی. لیکن ابھی بات یہ طے ہوئی, شاہ صاحب نے یہ جب یہ بات فرمائی کہ ہم ان کے عقائد ان کی کتابوں سے, کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ بھی ہیں شرکیہ بھی ہیں, یہ ان کی کتابوں سے ثابت کیا جائے گا. اب یہ بات ان دوستوں نے جو ابھی اٹھ کر یہاں سے گئے انہوں نے ان کو باہر جا کر بتائی. ان کے علماء کو بھی اس بات کی خبر ہے کہ ہمارے علماء کے عقائد ان کی کتابوں میں شرکیہ بھی ہیں اور کفریہ بھی ہیں, اس لیے وہ نہیں آ رہے. وگرنہ ان کے جب بات ہو گئی کہ 3 عالم آ کر بات کریں گے, آپس میں شرائط طے کریں گے, پھر کیوں نہیں آ رہے؟ نعرہ بازی کر رہے ہیں, اور نعرہ بازی میں بھی کیا یہ توحید پرست بنتے ہیں, نعرہ تکبیر بھی لگا رہے ہیں اور نعرہ رسالت کی آوازیں بھی بلند کر رہے ہیں. صرف مسئلہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے عقائد کفریہ بھی ہیں اور شرکیہ بھی ہیں, لیکن عوام الناس کو انہوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. تو میں آپ کو یہ تفصیل صرف اس لیے یہ میں نے بتائی کہ آپ سب کے علم میں آ جائے. ہمارا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے. اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہے, میری ذات میں کوئی خامی ہے, تو اس کی نشاندہی ہو, درست کیا جا سکتا ہے. ہمارے عقائد میں کوئی خرابی ہو, الحمدللہ ہم رجوع کرنے والے لوگ ہیں, اپنی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. لیکن جو لوگ کہ تھوڑے سے احباب اور پھر ان کا شفیق الرحمان کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں روکیں گے, یہ سب بولیں گے, یہ سب بولیں گے, تو صاف ظاہر ہے کہ وہ شرارت کے لیے آئے ہوئے. وگرنہ بڑی آسان. اب جب آئے ہیں کہ ہم جی آپ کا بہت اب اعتراض ہو رہا ہے ہمارے اوپر کہ ہم درس سننے کے لیے آئے ہیں, آپ نے اعلان کیا ہے, تو پھر درس سننے کا یہ تھا آرام سے آ کر بیٹھ جاتے, علماء بھی بیٹھ جاتے زمین پر, عوام بھی بیٹھ جاتی زمین پر, کیونکہ درس سننے آئے ہیں. گفتگو کر درس ہوتا, اس کے بعد موضوع کے مطابق جس موضوع پر درس ہوتا اس موضوع کے مطابق وہ سوال کرتے, ان کے جواب ان کو قرآن حدیث سے دکھائے جاتے, ان کی کتابوں سے دکھائے جاتے, مسئلہ حل ہو جانا تھا. لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے علماء کے لیے کرسیاں لگاؤ, صوفے لگاؤ. صوفہ تب لگتا ہے کہ جب برابری کی بنیاد ہو. برابری کی بنیاد تب بنتی کہ جب وہ یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ تحریر کی اس کے اوپر وہ گفتگو کرتے, تو
ایک عالم، ان کے لیے بھی 2-3 کرسیاں لگائی جاتی، ان کا عالم بیٹھتا، ان کے معاون بیٹھتا اور آپس میں ان مسائل پر کہ جو پہلے تحریر شدہ بات ہے اس پر گفتگو ہوتی اور لوگ سن لیتے. اور یہ جس طرح ریکارڈنگ ہو رہی ہے جہاں مرضی آپ پاکستان میں پڑھ دیکھیں، آپ باہر کسی ملک میں دیکھیں، انگلینڈ بھیج دیں، امریکہ بھیج دیں، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے. لیکن ان کو اس بات کی خبر ہے کہ ہم اگر بیٹھیں گے، ہماری کتابیں کھلیں گی، ہمارے علماء کے شرکیہ اور کفریہ عقائد سامنے آئیں گے تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا اور عوام ہم سے متنفر ہو جائے گی. عوام کو متنفر، اپنے آپ سے متنفر ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہوا ہے. شور مچا رہے ہیں، درس بھی سننے نہیں آئے، صرف شرارت کرنے آئے. تو یہ تمہید اور تفصیل صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کے علم میں بات آ جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے. ہم آج تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے بھی کسی کی زبان سے کوئی بری بات سنی ہو، کوئی شور سنا ہو، ہمارے کسی عالم، ہمارے کسی اور دوست نے کوئی زبان تیزی والی استعمال کی ہو، سب اطمینان سے بیٹھے ہیں، مگر وہ سب شور مچا رہے ہیں. یہ شور مچانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، ان کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے. ورنہ جس کے پاس قرآن حدیث ہو اس کو کس بات کی پرواہ ہے؟ آئے بات کرے. لیکن در حقیقت اندر کھاتے کچھ اور معاملہ ہے، لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہے. تو میں اب محترم ڈاکٹر پروفیسر سید تاج الرحمان شاہ صاحب حفظہ اللہ کو میں درخواست کروں گا کہ وہ درس قرآن ارشاد فرمائیں اور اسی موضوع پر ارشاد فرمائیں کہ جس موضوع پر کہ عقائد علماء دیوبند کیا ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ سوال و جواب بھی کریں گے. اور انشاءاللہ پھر جو بھی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے کرے سوال. ہماری مجالس میں تو سوال ہی ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیر و معاذ آ جاؤ درس بس چلے گئے بس دروازہ بند کر دیں. کوئی آئے، پولیس آئے، کوئی دروازہ نہیں کھولنا. اپنا صدیق صاحب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہوں کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا. ہاں پولیس آئے تب بھی نہیں کھولنا. پولیس بھی آئے تو تب بھی نہیں کھولنا. تو اندر جو ہے نا گھر سے داخلے کی اجازت نہیں ہے، یہ وارنٹ لے گیا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. جیسے آپ تمام لوگ جانتے ہی ہیں کہ عمارت بنانے سے پہلے عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اگر عمارت کی بنیاد نہ ہو، عمارت ہوا کے جھونکے سے گر جاتی ہے، پانی کے ریلے سے گر جاتی ہے. اگر بنیاد پختہ ہوگی تو عمارت مستحکم ہوگی. اگر بنیاد پختہ نہیں، عمارت بوسیدہ ہوگی. یہی معاملہ ہمارے اسلام کا ہے. جب تک انسان کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہو جاتا جو بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. زبان سے اقرار کرنا اس بات کا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کا ہم نے اقرار کرنا ہے. تصدیق بالقلب، اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنی ہے کہ واقعی دل میں کھوٹ نہیں ہے. جیسے عبداللہ بن ابی کلمہ تو پڑھا کرتا تھا لیکن دل میں اطمینان نہیں تھا، دل میں کھوٹ تھا، نفاق تھا، اس لیے اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا. وعمل بالجوارح، اس عقیدے کا پتہ کیسے لگے گا کہ یہ عقیدہ صحیح پر ہے؟ جو عمل کر رہا ہے اپنے اعضاء کے ساتھ وہ اس کی دلیل بن جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جب اللہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح مؤذن سے کہلواتا ہے یہ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جائے. یہ اس کے عقیدے کی تصحیح کی دلیل بن جائے گی کہ یہ عمل کے ذریعے ثابت کر رہا ہے کہ واقعی میں نے جو اللہ کو الہ مانا ہے میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں، اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں. بعض مقامات پر ہم دوستوں کی سستی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے
अकीदे पर मुनाजरे की बजाय मसाइल पर गुफ्तगू शुरू हो जाती है। आमीन ऊंची कहनी चाहिए कि नहीं, रफुल यदैन करना चाहिए कि नहीं, तरावी 20 हैं या 8 हैं। ये बात सही है कि रफुल यदैन अल्लाह के नबी की सुन्नत है, आमीन बिल जहर अल्लाह के नबी का तरीक़ा है, 8 तरावी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं। लेकिन ये मसाइल अभी मामूली मसाइल हैं। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे एक आदमी कैंसर का मरीज़ हो, टीबी का मरीज़ हो, अब वो डॉक्टर के पास जाए और कहे मुझे ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है, मेरा इलाज कीजिए। अब डॉक्टर सारी मेहनत उसके ज़ुकाम को दूर करने के लिए कर रहा है। इस डॉक्टर को पागल कहा जाएगा कि जो आदमी टीबी और कैंसर की वजह से मरने के करीब है, तुम उसके ज़ुकाम के पीछे लगे हुए हो। ज़ुकाम ठीक है, एक बीमारी तो है, लेकिन इसका इलाज तब बाद में किया जाएगा, पहले असल बड़ी बीमारी को तो पकड़ा जाएगा। ये मसाइल हमारे यहाँ इख्तलाफी हैं कि आमीन कहनी चाहिए ऊंची कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये मसाइल तो तब आएंगे कि जब किसी इंसान का अकीदा और मुसलमान होना तो साबित हो। अगर एक आदमी का अकीदा ही सही नहीं है, कुफरिया शिरकिया है, ना उसकी नमाज देखी जाएगी, ना उसका रोज़ा देखा जाएगा, ना ज़कात देखी जाएगी, ना कोई ज़िंदगी का और अमल देखा जाएगा। पहले ये फैसला होगा ये अल्लाह के साथ शिरक करता था, इसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। ये अल्लाह के साथ कुफ्र करता था, इसका कोई अमल देखा नहीं जाएगा, बल्कि सीधा जहन्नम में भेज दिया जाएगा। उलमाए देवबंद अकायद कुफरिया शिरकिया रखते हैं, ये एक हमारा दावा है और इस दावे की दलील हमारे पास है, बल्कि दलाइल हमारे पास है। सबसे पहले ये किताब है अल मुहन्नद अल मुफन्नद। इस किताब को लिखा है खलील अहमद सहारनपुरी ने। खलील अहमद सहारनपुरी उलमाए देवबंद के बहुत बड़े उलमा में से एक आलिम हैं और इस किताब को लिखने की वजह यह बनी कि अहमद रज़ा खान साहब सऊदी अरब गए और उन्होंने उलमाए देवबंद की बाज़ तहरीरें उठाकर उस वक्त के शरीफ मक्का के ज़माने में जो उलमाए हरम थे उनसे फतवा ले लिया कि उलमाए देवबंद काफिर हैं, मुसलमान नहीं, दारा इस्लाम से खारिज है। जब उलमाए देवबंद को ये बात मालूम हुई और हुसैन अहमद मदनी जो है वो वहाँ उस वक़्त मदीने में मौजूद थे। ये किताब जो पहले आपने जिसका फ़ोटो देखा, ये इदारा इस्लामियात अनारकली लाहौर से छपी है और ये जो दूसरी किताब है जिसका अरबी में आपने भी फ़ोटो देखा है, ये सऊदी अरब में छपी है। दोनों खलील अहमद सहारनपुरी की तसनीफ़ हैं। पहली जो उर्दू में और अरबी में पाकिस्तान में छपी है और वो सिर्फ अरबी में छपी है सऊदी अरब में, वो वहाँ तकसीम हो रही है। जब उलमाए देवबंद को इस बात का इल्म हुआ कि अहमद रज़ा ख़ान तो हमारे ख़िलाफ़ कुफ्र का फतवा ले आया है कि ये काफिर हैं और दार इस्लाम से खारिज हैं, तो इन लोगों ने वहाँ के उलमा से कहा कि आप लोग चूँकि उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ हैं, उन्होंने ऐसी तहरीरें पेश की हैं जिसके मानी आप नहीं जानते हैं, लिहाजा आप ऐसा कीजिए कि ये सवालात बनाकर आप दारुल उलूम देवबंद भेजिए। तो उन्होंने 26 सवाल तैयार किए और उनसे पूछा कि ये जो तहरीरें बाज़ आदमियों ने हमारे सामने पेश की, चूँकि हम उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ थे इसलिए हमें हकीकत का इल्म नहीं हो सका, लिहाजा आप लोग इन सवालों का जवाब दें। क्या वाकई आप लोगों के यही अकायद हैं या आपके इसके अलावा अकायद हैं? तो वो 26 सवाल 26 अकीदे बन गए जिनके जवाबात खलील अहमद सहारनपुरी ने उलमाए देवबंद के ज़रिए दिए और फिर इन उलमा ने तस्दीकें की, इस किताब पर मोहर लगाई कि वाकई यही हमारे जो अकायद हैं यही अकायद हैं। और इन उलमा में अशरफ अली थानवी साहब भी हैं, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब भी हैं, तकरीबन जो पुराने उलमा थे जो अब फौत हो चुके हैं 24 के करीब ये पुराने उलमा के दस्तखत मौजूद हैं। और उसके अलावा जो अब नए उलमा पैदा हुए बर्रे सगीर में, पाक व हिंद में, उसमें कारी तैयब साहब जो मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद हैं, यूसुफ बनोरी साहब जो कराची के उलमा देवबंद के बहुत बड़े उलमा में से हैं, बनोरी मदरसा जो है उन्हीं के नाम से अब चल रहा है, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कराची से हैं,
इसमें मुफ्ती महमूद साहब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद हैं और सूबा सनद से उनका ताल्लुक़ है, तो मुफ्ती महमूद साहब के भी इस पे दस्तखत मौजूद हैं। इसी तरीके से अब्दुल सत्तार तौसवी साहब शिया के मुकाबले में उनके बहुत बड़े उलमा में से हैं, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। तकरीबन 37 के करीब ये जो नए उलमा हैं उन लोगों ने इस पर दस्तखत किए हैं कि वाकई यही हमारे अकायद हैं और हम इन अकायद को तस्लीम करते हैं। आइए उसमें से मैं एक अकीदा जिक्र करता हूँ जिस अकीदे का ताल्लुक, सवाल ये है और ये सवाल नंबर है 13वां और 14वां सवाल। कहते हैं क्या कहते हो हक़ ताला के इस कौल के बारे में कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, क्या जायज़ समझते हो बारी ताला के लिए जिहत व मकान का साबित करना, या क्या राय? ये सवाल है जो उलमाए हरम की तरफ से उलमाए देवबंद को भेजा गया। सवाल नंबर 13 और 14। अब इसका जवाब देते हैं। कोई नहीं आना चाहता ना? अब इसका जवाब देने के लिए उन्होंने ये जवाब इस तरीके से दिया है। कहते हैं इस किस्म की आयत में हमारा मज़हब ये है कि इन पर ईमान लाते हैं और कैफियत से बहस नहीं करते। यकीनन जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मखलूक के औसाफ से मुनज़्ज़ह और नक्स और हुदूस की अलामात से मुबर्रा है, जैसा कि हमारे मुतक़द्दिमीन की राय है। और हमारे मुताखिरीन इमामों ने इन आयात में जो सही और लुगत और शरअ के एतबार से जायज़ तावीलें फरमाई हैं ताकि कम फहम समझ लें। मसलन ये कि मुमकिन है इस्तिवा से मुराद गलबा हो। अल्लाह जो कुरान मजीद में ये कह रहा है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, क्योंकि सवाल करने वाले ने यही सवाल किया, मा कौलुकुम फी अमसाल कौलिही ताला अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस किस्म की आयात के बारे में कि जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। अब कहते हैं कि मुमकिन है कि इस्तिवा से मुराद गलबा हो। गलबे का मतलब कि कोई आदमी किसी चीज़ पर गलबा हासिल कर लेता है तो कहा जाता है कि हो सकता है इससे मुराद इस्तिवा से ये हो। और हाथ से मुराद कुदरत हो कि जहाँ अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मैंने अपने दोनों हाथों से आदम को पैदा किया, कहते हैं कि हो सकता है इससे मुराद कुदरत हो, और ये भी हमारे नज़दीक हक है। अलबत्ता जिहत व मकान का अल्लाह ताला के लिए साबित करना हम जायज़ नहीं समझते। पूछा यह गया था क्या जायज़ समझते हो बारी ताला के लिए जिहत व मकान का साबित करना, जैसा कि इस आयत में ये मौजूद है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, के रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या तुम अल्लाह के लिए ये जिहत जो कुरान में मौजूद है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ, क्या इसको साबित करते हो? कहते हैं अलबत्ता जिहत व मकान का अल्लाह ताला के लिए साबित करना हम जायज़ नहीं समझते, और यूं कहते हैं कि वो जिहत व मकानियत और जुमला अलामात हुदूस से मुनज़्ज़ह व आली है। ये है उस सवाल का जवाब। अब आइए कुरान मजीद की आयात की तरफ कि अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह कर दी कि सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। कहीं फरमाया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, के रहमान अर्श पर मुस्तवी है। कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया आमिन तुम मन फिस समा, क्या तुम उस ज़ात से डरते नहीं हो जो आसमान में है। कहीं फरमाया अम अमीन तुम मन फिस समा, क्या तुम उस ज़ात से नडर हो गए हो कि जो आसमानों में है। कुरान की मुख्तलिफ आयात जो हैं इस बात पर शाहिद हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। और हदीस में वाज़ेह है, एक लौंडी लाई गई और वो सहाबी इस लौंडी को आज़ाद करना चाहता था। उसने अल्लाह के नबी से कहा कि आप इसका इम्तिहान लीजिए, आया ये मोमिना है कि नहीं, ताकि मैं इसको आज़ाद कर दूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दो सवाल किए। पहला सवाल ये था ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। जब आपने उस लौंडी से पूछा फ़इशारत इलस समा, लौंडी ने आसमान की तरफ इशारा करके कहा आसमानों। आपने उससे दूसरा सवाल पूछा मन अना, मैं कौन हूँ, तो वो कहने लगी अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे इसको आज़ाद कर दो, फ़इन्नहा मुमिनतुन, ये मोमिना। ईमान की दलील क्या हुई
और ईमान के बारे में सवाल क्या हुए? दो सवाल, एक अल्लाह के बारे में और ख़ास कर अल्लाह के बारे में कि अल्लाह है कहाँ, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, वो जिहत और मकान जिसका ये इनकार करते हैं। अल्लाह के नबी उसी के बारे में पूछ रहे हैं, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। ये कहते हैं हम जिहत को भी नहीं मानते, मकान को भी नहीं मानते, अल्लाह कहाँ है। आम लोगों का तो यही अकीदा है, अल्लाह हर जगह है। और उलमा का अकीदा ये है कि अल्लाह कहीं भी नहीं है। क्यों? अल्लाह लामहदूद है। अगर कहीं अर्श पर है तो अर्श तो महदूद है और अल्लाह लामहदूद है। अगर कहीं आसमानों में है, आसमान फिर भी महदूद है, अल्लाह लामहदूद है। कहीं दुनिया में है, दुनिया भी तो महदूद हुई, अल्लाह लामहदूद है। एक लामहदूद चीज़ महदूद में कैसे आ गई? लिहाजा उन लोगों ने अल्लाह का वैसे ही इनकार कर दिया कि हम अल्लाह के बारे में ये मानते ही नहीं कि अल्लाह है, अल्लाह लामका है। ये उनका अकीदा ठहरा। तो हदीस से ये बात साबित हुई कि अल्लाह के नबी उससे पूछते हैं, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। तो ये मकान और जिहत के बारे में अल्लाह के नबी सवाल करते हैं और लौंडी जिससे सवाल हुआ वो भी जवाब इसी के बारे में देती हैं, फिस समा, अल्लाह आसमानों में। साबित हुआ कुरान और हदीस से कि अल्लाह ताला आसमानों में। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस इमाम की ये तकलीद करते हैं वो इमाम इसके बारे में क्या राय रखता है। यही किताब अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो है, जिसमें वो अपने जवाबों को दर्ज कराते हैं, उसमें कहते हैं कि हम सिर्फ मसाइल में इमाम अबू हनीफा की बात मानते हैं। हम मसाइल में सवाल, पहले सवाल की तौज़ी में वो इसका जिक्र करते हैं कि हम मसाइल में इमाम अबू हनीफा की बात मानते हैं, अकायद में इमाम अबू हनीफा की बात नहीं मानते। माना क्या हुआ कि नाउज़ुबिल्लाह इमाम अबू हनीफा के अकीदे गलत थे, इसलिए अकीदे में इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करती। अकीदे में इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करनी, बल्कि किसकी करनी है? कहते हैं हम तकलीद करते हैं अबू मंसूर मातुरीदी की या अबुल हसन अशरी की। अकीदे उनके सही हैं, नाउज़ुबिल्लाह इमाम अबू हनीफा के गलत हैं। अब एक तरफ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आज़म कह रहे हैं कि ये इमाम आज़म हैं। अगर इमाम आज़म है और इन्होंने बहुत से सहाबा को देखा और उनकी फजीलत के गुण गाते हुए पता नहीं क्या अफसाने और दास्तानें घड़ी हैं इन लोगों ने, अगर वाकई ये हकीकत है तो अकीदा इमाम अबू हनीफा का गलत क्यों था? जब इमाम अबू हनीफा ने सहाबा से इल्म हासिल किया बकौल तुम्हारे, तो इमाम अबू हनीफा का अकीदा गलत क्यों था? अगर सही था तो उनकी अकीदे में तकलीद क्यों नहीं करते हो? मसाइल में सिर्फ क्यों मानते हो? तो ये जवाब में यानी ये तौज़ी करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं कि हम इमाम अबू हनीफा की अकीदे में बात मानने के लिए तैयार। आखिर क्यों? इसलिए कि इमाम अबू हनीफा का एक आध मसले को छोड़कर बाकी तमाम आइम्मा के साथ अकीदे के मसले में इत्तेफाक था। और ईमान की कमी और ज्यादती का जो मसला है, बाज़ लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि इमाम साहब ने रुजू कर लिया था और उसी अकीदे को मानने लग गए थे कि जो अकीदा असल इस्लाम।